हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसा जा रहा है आप लोगों का दिन और ये लॉकडाउन? मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। जैसा कि आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में कंप्लीट साइकिल्स और पूरी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हैं और आईसी इंजन में भी परफॉर्मेंस पैरामीटर को देखा जा चुका है, तो अब हम पढ़ेंगे एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। एयर स्टैंडर्ड साइकिल जैसा नाम से ही लग रहा है ना, air standard, it means the working fluid of cycle is air. Basically these are the auto cycle, diesel cycle and dual cycle. Auto cycle used for the spark ignition engine or petrol engines, diesel cycle for compression ignition engine, and or for diesel engines, or dual cycles for the fast diesels. Fast diesel are the special type of diesel, special type of fuel that is used for the cars. Generally cars are the petrol engine, but some sports cars are this army gypsy वगैरह, these are using for the high power, so we uses the diesel, that is the fast diesel. तो ड्यूल साइकिल फॉर द फास्ट डीजल्स। साइकिल्स को पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें होना चाहिए आपको पता कि कौन से एजम्पशंस हैं जो साइकिल में फॉलो करेंगे साइकिल के स्टडी के लिए। तो उन एजम्पशंस में सबसे पहले आता है आपका पहला ही एजम्पशन जो आपको पता है, द एयर वर्किंग मीडियम। इट मीन्स द वर्किंग मीडियम ऑफ द साइकिल इज एयर। एयर और परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस फॉलो करेगी आपके परफेक्ट गैस इक्वेशन को, दैट इज द पी वी इक्वल टू एम आर टी, एम वाई वी द रो इज इक्वल टू पी वाई आर टी, वेयर आर इज द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, P is the absolute pressure and T is the absolute temperature. Generally, like that diesel or fuels, these are incompressible fluids, but air is a compressible fluid. So the density of diesel, fuels or water, that is the fixed, but the density of air or compressible fluids may vary according to the temperature and pressure. तो जनरली आप क्या करते हैं डीजल इंजन में या पेट्रोल इंजन में यूज करते हैं आप फ्यूल, दैट इज द लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल समटाइम्स, बट जो हम एनालिसिस करेंगे वो करेंगे मानते हुए कि आपकी साइकिल जो है वो एयर स्टैंडर्ड साइकिल है और उसमें जो वर्किंग सब्सटेंस है या वर्किंग मीडियम है दैट इज द एयर। तो एयर की डेंसिटी जो होगी वो वेरी करती रहेगी टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से। ठीक, तो ये हुआ आपका पहला एजम्पशन ये हो गया। दूसरा एजम्पशन है ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल or the reversible cycles. It means the cycle included typically four process, and all processes are the reversible process. That is the cycle is the reversible cycle. Reversible process means the ideal. Ideal process means the process are the isobaric, isochoric, isothermal, adiabatic. These are the process of the reversible processes. So the cycle, complete cycle consists the combination of all these processes. Generally there is the four processes. There is a one compression, heat addition, expansion and heat exhaust. So generally in IC engine cycles having four process, and all cycles differ from each other by the process of heat addition. Like that auto cycle is the constant volume or isochoric heat addition, diesel cycle is the isobaric heat addition, and dual cycle मतलब partially isochoric or partially isobaric heat additions. So all cycles are differ in the only way to heat supply. In all other ways all cycles are the similar cycles. And next assumption is the heat addition from heat source, not chemical reaction. Generally we write, generally we see the heat addition of the
IC engine is from the chemical reaction. We burned the fuel, it is the chemical fuel, and we got the heat addition. But we assume there is no chemical reaction inside the cylinder. We assume that the heat addition from the heat source, that is the constant temperature heat source at T, and heat rejected at the sink, that is the constant heat temperature, lower temperature from the T2. So, and like that, this is the heat engine. Heat is supplied to the engine Q1 from the heat source, and heat rejected from the heat sink T2, and W is the work, and it is the Q1 minus Q2. Clear? Generally, we write the first law of the thermodynamics for this cycle: dq equal to du plus dw plus dw. Okay, heat addition is dq. Du is the internal energy and dw is the work done. So generally we assume in heat engine that dq is added from the heat source. Next is the no heat loss from system to surroundings. It means when we are working in engine working on operating on a cycle, there is a no heat transfer or heat loss from the system to surroundings. But कहाँ, मतलब where? Actually, first assumptions we are considering that the heat is added from the heat source and leaving to the surrounding, and next assumption is no heat loss from the system to surrounding. It means Q2 is the 0 और Q1 में भी 0. क्या है कि सिस्टम से सराउंडिंग से हम हीट इंटरेक्शन ही नहीं कर रहे हैं, तभी तो हीट लॉस नहीं होगा. तो जनरली होता क्या है कि जो आपका एक्सपेंशन और कंप्रेशन प्रोसेस होता है उसमें हम मान के चलते हैं कि हमारी जो हीट है वो सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन हीट एडिशन हो रहा है और हीट रिजेक्शन भी हो रहा है. बट एक्चुअलिटी में क्या होता है कि हीट को आपको डिसिपेट करना ही पड़ेगा. इवन इंजन सिलेंडर के बाहर हम वाटर जैकेट लगा के रखते हैं कि हीट कॉन्टिन्यूसली डिसिपेट होती रहे फ्रॉम द सिलेंडर. बट एजम्पशन है, हमें मान के चलना है. तो ये एजम्पशंस है कि देयर इज नो हीट लॉस फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स. नेक्स्ट एजम्पशन, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन प्रोसेस assumed isentropic. Sometimes isentropic is already known as the reversible adiabatic process. So reversible adiabatic means there is a entropy constant. So expansion and compression process are assumed to be isentropic. Next is the working medium has constant specific heat during the cycle. That is also an assumption. Specific heat of the cycle or working medium has constant specific heat during the cycle. अब देखिए होता क्या है, जनरली जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे जैसे सीपी बढ़ता है, सीपी के साथ साथ सीवी और ज़्यादा बढ़ता है. ठीक, और जब सीपी के रिस्पेक्ट में सीवी ज़्यादा बढ़ेगा तो सीपी अपॉन सीवी का या गामा कैरेक्टरिस्टिक गैस जो आपका ये गामा है ये नीचे मतलब घटेगा. ये एक्चुअलिटी में होता है, बट हम मान के क्या चल रहे हैं कि सीपी सीवी और गामा की सारी वैल्यू क्या रहने वाली है ड्यूरिंग द साइकिल इज द कांस्टेंट. बट इन रियल टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा किसी भी वर्किंग फ्लूइड का या वर्किंग सब्सटेंस का, वर्किंग मीडियम का, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम and specific heat of constant pressure both are increasing, but the specific heat at constant volume is more increased than the specific heat at constant pressure. That's why
gamma is decreased C4 upon CV, and these are the values for the air at 1 atmospheric pressure. Cp is equal to 1.005 kilojoule per kg Kelvin, and Cv equal to 0.717 kilojoule per kg Kelvin. R, that is the characteristic gas constant, is equal to 0.278 Cp upon Cv, और गामा इक्वल टू 1.4 फॉर डायटोमिक गैसेस। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे गामा से, और आर इज द कंप्रेशन रेशियो, अभी आगे टर्म आएगा। जो आपने प्रोसेस पैरामीटर्स में पढ़ा था आईसी इंजन के लिए, V1 अपॉन V2 और टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक, तो गामा और आर के बढ़ाने से इफिशियंसी में क्या असर पड़ता है, ये अपन लोग आखिर में देखेंगे, लास्ट में। तो दीज आर द एजम्पशंस। अब आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाई एजम्पशंस, या फिर जब आपने इतना सब कुछ एज्यूम कर लिया तो एक्चुअलिटी में बचा क्या? तो बचा देखो कुछ नहीं, सच्चाई है वो यही है कि आईसी इंजन में आपके इतने एजम्पशन के बाद जब आप एनालिसिस करने बैठते हैं ना, तो आपको एक्चुअल आईसी इंजन का कुछ भी पता नहीं चलने का। आपको पता क्या चलेगा कि एक ट्रेंड कि थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाइड हो जाती है साइकिल आफ्टर दीज ऑल एजम्पशंस, अप्लाइंग आफ्टर दीज ऑल एजम्पशंस, बट वी गेट द ट्रेंड्स हाउ द आईसी इंजन विल वर्क। जैसे कि क्या हुआ, आपने किसी एक इंजन का कंप्रेशन रेशियो 8 लगाया और दूसरे इंजन का कंप्रेशन रेशियो 10, और एफिशिएंसी आपकी 60 से 65 बढ़ गई। तो यहाँ से एक ट्रेंड पता चला क्या, कि कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से एफिशिएंसी बढ़ती है। So by the analysis of these cycles we get a trend of actual IC engines. Actually actual IC engine is a very complicated engine. So these cycles, analysis of these cycles by these assumptions takes us a advantageous position that we find how the IC engine will work. Clear? So these are the assumptions. अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपकी साइकिल। साइकिल्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑटो साइकिल फॉर द स्पार्क इग्निशन इंजन और पेट्रोल इंजन। दिस इज नॉट ऑटो, AUTO, स्पेलिंग क्या है OTTO, ऑटो। तो इस साइकिल को किसने डिस्कवर किया था? निकोलस ऑटो इन 1876, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन साइकिल। अभी आपको मैंने बताया था कि जो भी जितनी भी साइकिल्स हैं वो सारी की सारी डिफ़र कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ हीट एडिशन में। बाकी सारे प्रोसेस लगभग सारी साइकिल्स में मतलब जो भी स्टैंडर्ड साइकिल हैं दैट डील्स इन द आईसी इंजन, उन सारे में बाकी सारे प्रोसेस लगभग सेम है, बट जो हीट एडिशन है वो डिफ़र कर रहा है। तो ऑटो साइकिल में हीट एडिशन कैसे होगा? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या समटाइम्स दिस इज नोन आल्सो नोन एज द आइसोबारिक हीट एडिशन साइकिल। सबसे पहले हम लोग पीवी डायग्राम बनाते हैं। पीवी डायग्राम में PV 1 to 2 क्या है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 2 to 3 क्या हो रहा है? आइसोकोरिक हीट एडिशन। आइसोकोरिक हीट एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हो रहा है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। 3 to 4 एक्सपेंशन, एंड 4 to 1 आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं आपका टॉप डेड सेंटर, दैट इज द टॉप डेड सेंटर, दिस इज द बॉटम डेड सेंटर। क्लियर? इसको नीचे तक लेके आते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर इज द स्वेप्ट वॉल्यूम, और दिस इज नोन एज द स्ट्रोक लेंथ। देखिए नीचे एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाए हैं, यह है स्वेप्ट वॉल्यूम, डिस्टेंस बिटवीन TDC टू BDC, एंड दिस इज द डी इज द बोर डायमीटर और सिलेंडर डायमीटर, उसको एक ही बात करते हैं। और पूरे सिलेंडर में टॉप डेड सेंटर से आगे का ऐसा बोल जाता है कंप्रेशन रेशियो, सॉरी क्लियरेंस वॉल्यूम, दैट इज द क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक, क्लियरेंस वॉल्यूम किस लिए? देखिए इंजन का जो पिस्टन का जो सिलेंडर पिस्टन हेड होता है उसके ऊपर आपको स्पार्क प्लग माउंट करना है।
इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट, सारी की सारी एसेसरीज को माउंट करना होता है, तो उतना स्पेस हम छोड़ के रखते हैं, जितना ये आप लोगों ने छोड़ के रखा, देखा ये वाला, दैट इज द वीसी, विच इज द क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियर। अभी क्या है आपको कि वी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, π/4 डी स्क्वायर इज द बोर डायमीटर और डिस्टेंस डायमीटर और सिलेंडर डायमीटर, कुछ भी बोल सकते हैं, इनटू एल इज द स्ट्रोक लेंथ। ओके, और आर क्या हो गया, आर इज द कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम अपॉन कंप्रेशन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम मतलब वीसी प्लस वीएस अपॉन वीसी, और वी1 देखो, वी1 टोटल वॉल्यूम वीसी प्लस वीएस अपॉन वी2 मतलब वीसी। ओके, तो वी1 अपॉन वी2, इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं, आर इक्वल टू 1 प्लस वी एस अपॉन वी सी, और वी एस अपॉन वी सी इक्वल टू आर प्लस आर माइनस 1। अब क्यूबिक सेंटीमीटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए क्यूबिक सेंटीमीटर क्या होता है ना, ढेर सारी, देखो जो आपकी बाइक है, सिंगल सिलेंडर की बाइक है, तो उसमें के लिए तो आपको जो उस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, क्यूबिक वॉल्यूम, दैट इज द क्यूबिक या सीसी उसकी। बट एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे मारुति 800 3 सिलेंडर का आपका इंजन होता है उसके अंदर, तो क्या करते हैं, उसकी क्यूबिक कैपेसिटी को आपको डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ सिलेंडर इनटू शाफ्ट वॉल्यूम, दैट इज द सीसी ऑफ द बाइक और कार। देखिए प्रोसेस पैरामीटर में आपने क्या पढ़ा था, कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाने से एफिशिएंसी बढ़ती है, और यहाँ आपको क्या पता चल पा रहा है, एल, वी एस शाफ्ट वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, एल, तो लेंथ, स्ट्रोक लेंथ आप बढ़ा दीजिए तो आपका शाफ्ट वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो शाफ्ट वॉल्यूम और क्या बोलते हैं, कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाने से, यहाँ देखिए ना, वी सी अपॉन वी एस, यहाँ वी एस बढ़ाने से आर की वैल्यू, मतलब ये वैल्यू टोटल क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब आर की वैल्यू अगर शाफ्ट वॉल्यूम बढ़ाने से बढ़ती है, तो कोई भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम ज़्यादा बड़ा सिलेंडर क्यों का इंजन क्यों नहीं बनाते, क्योंकि शाफ्ट वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, शाफ्ट वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा रहेगा, और कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा रहेगा तो इंजन की इफिशियंसी अपने आप इंक्रीज होगी। तो इसका आंसर क्या है कि ज़्यादा बड़ा सिलेंडर बढ़ाने से रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा ना वहाँ पे, तो देयर इज अ ह्यूज चांस ऑफ मोर वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन बढ़ता है, और ज़्यादा वाइब्रेशन बढ़ेगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम। तो दूसरा तरीका क्या है, वीसी घटा दो, तो वीसी घटाने से कोई भी पूछ सकता है कि वीसी ख़त्म क्यों नहीं कर सकते। अब अगर वीसी आपने ख़त्म कर दिया तो क्या होगा, जो आपको जो पिस्टन सिलेंडर है दैट इज़ कोलाइड विद द पिस्टन हेड, और वहाँ पे आपने बहुत सी चीज़ों को माउंट कर रखा है, तो आप उसको भी कम नहीं कर सकते। वीसी वैसे भी मिनिमम रखते हैं, जितना मिनिमम आप रख सकते हैं वीसी उतना मिनिमम, और वीएस के लिए आप मैक्सिमम एक लिमिट है, तो चांस क्या हो जाता है, कम हो जाता, वाइब्रेशन का चांस बढ़ जाता है। तो वीएस भी एक मैक्सिमम लिमिट तक ही रख सकते हैं हम, बहुत ज़्यादा वीएस मतलब स्ट्रोक लेंथ भी आप नहीं बढ़ा सकते, और बहुत ज़्यादा आप कंप्रेशन वो जो आपका क्लियरेंस वॉल्यूम है उसको कम भी नहीं कर सकते। क्लियर। अभी क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है बहुत प्यारा, कि पीवी से टीएस डायग्राम बनाओ या टीएस से पीवी डायग्राम बनाओ। तो मैं आपको बताता हूँ कि पीवी से टीएस डायग्राम बनाना कितना आसान है। थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों को पढ़ाया था, एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। ओके, दिस इज द पीवी फ्रॉम पीवी टू टीएस। टीएस डायग्राम पे डिफरेंट प्रोसेस, देखो आपसे टीएस डायग्राम पे कभी नहीं पूछेगा आप आइसोथर्मल प्रोसेस बनाओ या एडियाबैटिक प्रोसेस को ड्रॉ करो, हमेशा क्या पूछेगा आपका, आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस को ड्रा करो। ठीक, तो उसके लिए देखो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, टीएस डायग्राम। ठीक, ये एक देखो, ये एक प्रोसेस है और दूसरा प्रोसेस ये बना हुआ है। ठीक, ये P है और ये V है। सिमिलरली इधर ये V है और इधर ये P है। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कौन सा प्रोसेस का स्लोप कितना है। तो उसके लिए आपको TDS इक्वेशन याद है दोनों, TDS इक्वल टू CVDT प्लस PDV और TDS इक्वल टू CPDT माइनस VDP। अभी क्या करने हैं हम, कांस्टेंट
वॉल्यूम के लिए सी बी इक्वल टू 0 और कांस्टेंट प्रेशर के लिए सी पी डी पी इक्वल टू 0. सो टी डी एस अपॉन टी डी टी अपॉन डी डी एस इज द स्लोप ऑफ टी एस डायग्राम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू टी बाई सी बी एंड डी टी बाई डी एस एट कांस्टेंट प्रेशर इज टी बाई सी पी एंड सी पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सी बी. दैट बाई क्यों? क्योंकि सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू पॉजिटिव. सो यहाँ से क्या पता चला आपको? डी टी अपॉन डी एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज मोर देन डी टी अपॉन डी एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और स्लोप एट आइसोकोरिक प्रोसेस इज मोर देन द स्लोप ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस. अभी स्लोप कैसे डिफाइन करेंगे? देखो जनरली क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन जीरो स्लोप, वर्टिकल लाइन इनफाइनाइट स्लोप. क्लियर ना? तो जो भी प्रोसेस वर्टिकल लाइन के नज़दीक होगा वो क्या होगा, उसका स्लोप ज़्यादा होगा, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन के नज़दीक होगा उसका स्लोप कम होगा. तो प्रेशर आइसोबारिक प्रोसेस का, आइसोबारिक जो प्रोसेस है उसका जो स्लोप है वो कम है, तो आइसोबारिक इज द नियर टू द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड आइसोकोरिक प्रोसेस इज नियर टू द वर्टिकल लाइन. सिमिलरली अगर हम पीवी डायग्राम पे हम थर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस को देखते हैं, तो देखो क्या क्या पढ़े थे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में? डी पी अपॉन डी वी इक्वल टू माइनस एन पी बाई वी. इट मीन द स्लोप इज द निगेटिव और स्लोप ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके, तो आइसोथर्मल प्रोसेस किसके नज़दीक होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन के. और एडियाबैटिक प्रोसेस किसके नज़दीक होगा? वर्टिकल लाइन के. ठीक है, इधर कंप्रेशन है और नीचे की ओर एक्सपेंशन हो रहा है. तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्या खींचेंगे अब? अपनी टी एस डायग्राम ऑफ ऑटो साइकिल. ओके, 1 से 2 इज द एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब एंट्रोपी इज कांस्टेंट. कैसे हो सकता है? ऊपर या नीचे, दोनों तरफ जा सकता है. 1 से 2 क्या हो सकता है? देखो 1 और 2 या फिर 1 और 2 कैसे होगा? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लगाइए आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. लगवा चुके हैं हम. ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे लगाइए. 2 से 3 एक्सपेंशन, हाँ 2 से 3 हो क्या हो रहा है? देखो 2 से 3 हो रहा है आइसोकोरिक हीट एडिशन होगा, क्यू इन होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा. 3 से 4 और 4 से 1 साइकिल हो गई क्लोज. ओके, तो ये हो गया, ये था आपके लिए टी एस डायग्राम. टी एस डायग्राम के बाद हम लोग क्या करते हैं? इस कंप्लीट साइकिल का एनालिसिस करना शुरू करते हैं. एनालिसिस के लिए आप सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द प्रोसेस, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी यू और डी ई प्लस डी डब्ल्यू फॉर द प्रोसेस. अब इस प्रोसेस के लिए, प्रोसेस को हटा के हम कहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं इसको? साइकिल में. तो हमको क्या करना पड़ेगा? साइक्लिंग इंटीग्रल लेना पड़ेगा. साइक्लिंग इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू इक्वल टू साइक्लिंग इंटीग्रल ऑफ डेल यू प्लस साइक्लिंग इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू. साइक्लिंग इंटीग्रल ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी इज 0, क्योंकि डी क्यू इज द पाथ फंक्शन एंड डी डब्ल्यू इज ऑल्सो अ पाथ फंक्शन. ओनली पॉइंट फंक्शन इज द एनर्जी, इंटरनल एनर्जी. सो डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू फॉर अ साइकिल. इसका मतलब क्या हुआ? क्यू नेट, हीट नेट इक्वल टू वर्क नेट. हीट नेट क्या है? Q1 माइनस Q2 दैट इज स्टोर्ड इन द साइकिल. एंड W नेट क्या हो गया? W ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन माइनस वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्रेशन. क्लियर? इसमें तो कोई डाउट नहीं है. अभी क्या करते हैं? Q1 और Q2 की वैल्यू निकालते हैं. हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या हो यूज करेंगे हम? CV. और हीट क्या होती है? Q इक्वल टू mCV डेल्टा T. सो mCV T3 माइनस T2 Q1 and Q2 equal to mCV T4 minus T1. ओके, सो Q net equal to Q1 minus Q2 किसके इक्वल है? W net. हमने अभी ऊपर देखा. तो इफिशिएंसी क्या होती है? टोटल नेट वर्क डन अपॉन हीट एडिशन. और Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1. Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू रखो तो इफिशिएंसी क्या निकल के आएगी? 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2. बट एक्चुअली हमें क्या करना है? इस फॉर्म में इफिशिएंसी को हम देख ही नहीं रहे हैं. हम इफिशिएंसी को किस फॉर्म में देख रहे हैं? शुरुआत से
कंप्रेशन रेशियो के टर्म में। तो ये जो टेम्परेचर है ना, इसके लिए अपने को कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे इस फार्मूले में, और उस मॉडिफिकेशन के लिए आपको क्या दिख रहा है, कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, आइसेंट्रोपिक या रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, एक्सपेंशन का भी, कंप्रेशन का भी। तो उसके लिए आपको कुछ फार्मूले हमेशा याद रखने हैं जो थर्मोडायनेमिक्स में अपन ने बताए थे आपको। कौन कौन से फार्मूले थे, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी बाई रो की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और टी की पावर गामा अपॉन पी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर। तो इन फार्मूलों को यूज करना है आपको ड्यूरिंग द डीलिंग विद द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक, तो अपने को क्या करना है, ये जो T2 माइनस T4 निकल के आया ना अपना, इसको हम डील करेंगे। कैसे डील करेंगे, देखो प्रोसेस 1 से 2 कौन सा है, आइडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। तो इसके लिए क्या होगा, T टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो टी वी वाला फार्मूला अपन यूज करते हैं, टी वी गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर। तो T1 V1 की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस वन। यहाँ से क्या आया, T2 इक्वल टू T1 V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस वन, और T2 इक्वल टू T1 R की पावर गामा माइनस वन, और T1 बाई T2 इक्वल टू 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस वन। क्या हुआ, T1 अपॉन T2 इक्वल टू 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस वन। Clear from here? Okay, so we take this T2 upon T1 equal to R की पावर गामा माइनस वन, और T1 upon T2 equal to 1 upon R की पावर गामा माइनस वन। Similarly for process 3 to 4, T3 V3 की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू T4 V4 की पावर गामा माइनस वन, T3 इक्वल टू T4 R की पावर गामा माइनस वन, और T4 इक्वल टू T3 अपॉन R की पावर गामा माइनस वन, या T3 अपॉन T4 इक्वल टू R की पावर गामा माइनस वन। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में देखिए आपका राइट साइड सेम है। इसका मतलब क्या है, हम लेफ्ट साइड को भी इक्वल कर सकते हैं, T2 माइनस T2 अपॉन T1 इक्वल टू T3 अपॉन T4। इन दोनों में को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, T4 अपॉन T1 इक्वल टू T3 अपॉन T2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वन दोनों से घटा दिया हमने, क्या किया, T4 अपॉन T1 माइनस वन इक्वल टू T3 अपॉन T2 माइनस वन। यहाँ से क्या आया, T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। इसकी इस पूरे टर्म जो है आपका, इस पूरे टर्म में हम लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म की जगह पे T1 अपॉन T2। क्लियर। तो हम इसको T1 अपॉन T2 लिखते हैं। तो एफिशिएंसी क्या थी, 1 अपॉन 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। तो उसकी जगह हमने क्या लिखा, T1 अपॉन T2। एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2, बट हमने T1 अपॉन T2 को क्या लिखा था, T1 अपॉन T2 इक्वल टू 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस वन। ठीक, तो T1 अपॉन T2 की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस वन। तो एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2 और 1 माइनस 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस वन, वेयर T1 इज द टेम्परेचर बिफोर द कंप्रेशन एंड T2 इज द टेम्परेचर आफ्टर द कंप्रेशन। अगर आपको दोनों टेम्परेचर दिए हों, बिफोर द कंप्रेशन और आफ्टर द कंप्रेशन, तो आपके लिए सबसे आसान फार्मूला ये है फॉर द एनालिसिस ऑफ द इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। ओके, तो अब ऑटो साइकिल के लिए हमने इफिशिएंसी निकाल ली, उसके लिए नेट वर्क डन। नेट वर्क डन कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू नेट इक्वल टू क्यू नेट। क्यू नेट कितना, Q1 माइनस Q2। सो इफिशिएंसी इक्वल टू डब्ल्यू नेट अपॉन Q1। अब डब्ल्यू नेट को हम कैसे लिख सकते हैं, इफिशिएंसी इंटू Q1। इफिशिएंसी के लिए आपके पास दो फार्मूले हैं, 1 अपॉन T1 अपॉन T2 इंटू Q1, और 1 माइनस 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस वन इंटू Q1। किसी भी तरीके से आप इफिशिएंसी को निकाल सकते हैं, या वर्क डन, नेट वर्क आप इस तरीके से निकाल सकते हैं ऑटो साइकिल का। इसके बाद एक और चीज़ पूछी जाती है ऑटो साइकिल में, डेट इज़ द मीन इफेक्टिव प्रेशर। अब मीन इफेक्टिव प्रेशर के लिए आपको क्या करना है, देखो हम पीवी डायग्राम बनाते हैं फिर से ऑटो साइकिल का। 1 to 2 कंप्रेशन, 2 to 3 हीट एडिशन, 3 to 4 एक्सपेंशन एंड 4 to 1 इज द हीट रिजेक्शन। अब इसमें P3 इज द पीक,
टेम्परेचर एंड P1 इज द लोवेस्ट प्रेशर. सो इसके बीच में हम एक PM लाइन खींचते हैं. PM इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड बिलो द PM लाइन ऑन PV डायग्राम इज द वर्क डन. तो वर्क डन को हम कैसे निकाल सकते हैं? P नेट या W नेट इक्वल टू मीन प्रेशर इंटू स्वेप्ट वॉल्यूम, दैट इज द स्वेप्ट वॉल्यूम. तो मीन प्रेशर इक्वल टू W नेट अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम. W नेट या नेटवर्क की आपके पास तीन फार्मूले हैं. 1 माइनस T1 अपॉन T2 Q1, 1 माइनस आई की पावर गामा माइनस 1 Q1 एंड स्वेप्ट वॉल्यूम इज द π/4 d स्क्वायर इंटू L. ओके, सो स्वेप्ट वॉल्यूम या देखो W नेट की जगह अगर आपको इंडिकेटेड पावर दी हो तो इंडिकेटेड पावर अपॉन VS डॉट. VS dot is the π/4 d square into n/60, that is the power stroke. N equal to n/2 for 4 stroke and n for the 2 stroke. By this we consider the how we calculate the mean effective pressure in Otto cycle. Okay, अभी हम क्या देखते हैं? Effects of gamma and R. R is the compression ratio, gamma is the gas constant for the ऑन इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल. तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1. इट मीन्स आर को बढ़ाने से भी इफिशियंसी बढ़ रही है और गामा को बढ़ाने से भी इफिशियंसी बढ़ रही है. ओके, तो चलो एक ग्राफ खींचते हैं कंप्रेशन रेशियो और इफिशियंसी के बीच में. दैट इज द ग्राफ जो आपको दिख रहा है एंड दिस इज द गामा. ये ग्राफ है फॉर monatomic gases, diatomic gases and polyatomic gases. Okay, that is the increased level of the gamma and this is the efficiency. तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा? आर और गामा दोनों को बढ़ाने से इफिशियंसी बढ़ती है. लेकिन अगर जैसे कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कभी कि क्या हो अगर हम कोई आईसी इंजन दैट्स में पेट्रोल की जगह या एयर की जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन यूज करें तो इफिशियंसी पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, डायटोमिक गैसेस के लिए गामा की वैल्यू 1.4, मेथेन इज द पॉलीएटॉमिक गैस एंड गामा की वैल्यू कितनी? 1.3. तो मतलब क्या होगा? एयर की जगह पर अगर आप मेथेन यूज करेंगे तो इफिशियंसी क्या? घट जाएगी. ओके, और हीलियम यूज कर लिए. हीलियम इज द मोनोटॉमिक गैस है और उसका गामा की वैल्यू 1.67, तो इफिशियंसी बढ़ जाएगी. तो दिस इज द ओवरऑल ऑफ योर ऑटो साइकिल. ऑटो साइकिल में इसके बाद बचते हैं न्यूमेरिकल्स. और देखिए, आईसी इंजन में न्यूमेरिकल्स आते हैं या फिर अगर आगे चल के आप गेट की तैयारी करेंगे तो गेट के लिए भी अगर न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे ना तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल से ही मिलेंगे. तो ये चीज़ें आपको देखनी बहुत ज़रूरी हैं. चलिए, अगले लेक्चर में आपके लिए रहेगी डीजल साइकिल. ओके, थैंक यू.